Good evening, everyone. So today we are going to start spherical mirrors. Now, last day we have seen, according to sun and what is the light, कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करता है. प्रैक्टिकल जानना है, प्रैक्टिकल. बुकिश लैंग्वेज में भी घुसना है प्रैक्टिकल. मैंने आपको बताया था कि भाई एनसीईआरटी की एक लाइन को बहुत महत्वपूर्ण है गहराई से पढ़ने का और साथ ही मार्कर यूज जरूर करने का. ठीक है, चलिए जरा देखते हैं. स्फेरिकल मिरर्स. द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड. जो बताया जा रहा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड. कर्व्ड, डू यू नो कर्व्ड? इधर कर्व्ड या इधर कर्व्ड. वो कर्व रहेगा यार, इधर से रहेगा इधर से रहेगा कर्व. ओके, इनवर्ड और आउटवर्ड. और अंडरस्टैंडिंग इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड मतलब रहेगा इस तरह का. और स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards. A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faces towards the center of the sphere, is called a concave mirror. That is a spherical mirror whose reflecting surface is curved outward. जो outward होता है उसको क्या बोलते हैं? Called a convex mirror. You can see here diagram figure 10.1, concave and convex. It's called a convex mirror. The schematic representation of this mirror is shown in figure 10.1. You may note in this diagram that the back of the mirror is shaded. मैंने लास्ट डे भी ये कहा था कि बैक जो होता है ना वो सैड होता है. आपको मैंने लास्ट डे बताया था कि यार आप ड्रेसिंग टेबल में जब देखते हो ना तो उसको उसके जो मिरर है उसके बैक में सेट किया जाता है. अगर सेट नहीं किया जाएगा तो यू कैन नॉट सी योर इमेज प्रॉपरली, राइट. जस्ट मूव फॉरवर्ड. You may now understand that the surface of the spoon curved inward can be approximated to a concave mirror and the surface of the spoon bulged outward can be approximated to a convex. तो इस तरह आप convex और concave को समझ रहे हैं. आप देख रहे हैं किसको बोलते हैं concave. इधर मतलब concave और इधर मतलब convex. ऐसा हो सकता है कि चूंकि मैं फ्रंट कैमरा से बना रहा हूं तो ये जस्ट ऑपोजिट हो जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा. बुक में फ्रंट कैमरा आ रहा है ना, थोड़ा सा एंगल ऑपोजिट मेरा हो सकता है, लेकिन बुक में देख लीजिएगा इसको कॉन्केव बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं. ओके, बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज द अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ न्यू टर्म्स. These terms are commonly used in discussion about spherical mirrors. The center of reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. उसे पोल कहा जाता है. It lies on the surface of the mirror. The pole is usually represented by the letter P. जो पोल होता है ना भाई उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर P से. अभी गहराई से देखिएगा, मैं बताऊंगा इसके न्यूमेरिकल्स एंड ऑल एकदम बिना स्किप किए हुए. सब कुछ देख लेना है. हाथ में, आपके हाथ में एनसीईआरटी की बुक रहनी चाहिए. पहला तरीका मैंने बताया है कि उसको एकदम मार्कर से ये कर लेना है और एकदम बिल्कुल गहराई से मेरे को सुनने का. The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere has a center. This point is called the center of curvature of the spherical mirror. तो center of curvature जो होता है ना, ये क्या होता है? The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere has a center. This point is called the center of curvature of the spherical mirror. Center of curvature होता है spherical mirror का. It is represented by the letter C. Please note that the center of curvature is not a part of the mirror. It lies outside its reflecting surface. The center of curvature of a concave mirror lies in front of it. However, it lies behind the mirror in case of convex mirror. You may not figure in this 10.2 A and B. A and B में दिखाया गया है कॉन्केव मिरर में किस तरह बनता है, कॉन्वेक्स में किस तरह बनता है. आप अभी मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे हैं एंड इट इज़ वेरी श्योर कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, आपने इसको देखा होगा. लेकिन हाँ, इस बात को बहुत गहराई से समझने का है. देखिएगा यहाँ पर
The radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of mirror. It is represented by the letter R. रेडियस को यहाँ पर R से डिनोट किया जाता है. किस किस से किसको डिनोट किया जाता है वो बताया जा रहा है. You may note that the distance PC is equal to the radius of curvature. PC जो है वो radius of curvature है. Imagine a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. This line is called. तब यहाँ पर ये आपको दिखाने की जरूरत है कि दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर होता है. ठीक है. अब क्या है कि रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल. लेट अस अंडरस्टैंड एन important term related to mirror through an activity. यहाँ पर एक activity दिया गया है. You can read it carefully, but after that here I have told you earlier, the paper earth first begin to burn producing smoke. Eventually it may even catch fire. Why does it burn? मैंने बताया था कि पावर का कुछ रख तो यार पानी पूरा एकदम प्रैक्टिकली क्या दिखाता है, दिखाता नहीं है. तो मतलब जो कैच करता है फायर को, तो फायर को कैच कैसे करता है भाई? क्यों? सारे लाइट्स आते हैं और वो मतलब किस तरह आपको यहाँ पर दिखाया गया है. दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर. पूरे सन का इमेज आपको मैंने बताया था ना कि मतलब जो पावर लेंस होता है उससे पूरे पावर ऑफ आता है और उसको मतलब पूरी तरह जला देता है. ठीक है, वो रेज है. दैट इज नथिंग बट द रेज. द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द concentration ऑफ द लाइट ignites द पेपर. concentration, ओके, दैट यहाँ पर देखिए कि इतना concentration तक पेपर जलाता है. द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर gives the approximately value of focal length of the mirror. Let us try to understand this observation with the help of a ray diagram. यहाँ पर एक रे डायग्राम दिया गया जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट इन्फिनिटी, अनंत में रखा गया है, इन्फिनिटी में रखा गया है. अब आप देख रहे हो कि किस तरह मतलब यहाँ पर रेज जब जा रहे हैं तो कहाँ पर फोकल लेंथ बन रहा है, इसको डायग्राम से देखना पड़ेगा. एम है आपका मिरर एट इन्फिनिटी में, यहाँ पर ए बी एट इन्फिनिटी में. दो डायग्राम दिया गया, एक कॉन्केव में एक कॉन्वेक्स में. इसको आप प्रैक्टिस करोगे. ए नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कॉन्केव मिरर. ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज. they all are meeting interesting at a point on the principal axis of the mirror. This point is called the principal focus of the concave mirror. ये concave mirror का था. Similarly, observe figure 10.2b. How are the rays parallel to the principal axis reflected by a convex mirror? The reflected rays appear to the principal focus on the convex mirror. The principal focus is represented by the letter F. याद कीजिएगा, प्रिंसिपल फोकस जो है F से डिनोट किया जाता है और जो आपका स्फेरिकल मिरर में इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. जो दूसरा मतलब था द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. उसको हम छोटे F से डिनोट करते हैं. अब जब आगे आप जाइएगा तो आगे आपको क्या मिलेगा एनसीईआरटी के बुक में. यहाँ पर बताया जा रहा है कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाई and large spherical surface then has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of spherical mirror is called its aperture. In figure 10.2, distance mn represented the aperture. We shall consider in our discussion only such spherical mirrors whose aperture is much smaller than its radius of curvature. यहाँ पर एक देखिए एक संबंध बनता है किसमें, रेडियस में और फोकल लेंथ में. क्या संबंध? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट नो. आई एम टेलिंग यू दैट इज देयर a relationship between the radius of curvature and focal length? Yes. Length f of spherical mirror for spherical mirror of small apparatus, the radius of curvature is found to be equal to twice the focal length. ये जो आप आर देख रहे हैं ना वो फोकल लेंथ का ट्वाइस रहता है. इसका अर्थ क्या हुआ? अगर रेडियस जो है
4 है तो फोकल लेंथ कितना होगा भाई, R इज इक्वल टू 2f। फोकल लेंथ यदि 2 है तो रेडियस भाई 4 होगा, ट्वाइस। ठीक है, दिस imply that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and center of curvature। अब हम आते हैं यहाँ पर 10.2.1 में दिया है कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से कैसे कैसे इमेज बनते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स, यू ऑल्सो नो द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय देम। हाउ अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनते हैं। हाउ कैन वी लोकेट द इमेज formed by a concave mirror for different position of the object। Are the image real और वर्चुअल, वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। तो ये से बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं। आर द enlarged emissions of have the same size, we shall explore with some activity। अब some activity में आ गए हम लोग, मतलब साल भर से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ा मैं स्पीडली पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले भी कर चुका हूँ कि इसको बिना स्किप किए हुए, इसलिए देखिएगा चूंकि कल के डेट में मैं थोड़ा स्पीड किया, मैं कहा कि भाई मेडिसिन करते रहिए, टेंशन नहीं लेना है, आप तुरंत तुरंत याद कर पाइएगा, कैच कर पाइएगा। क्योंकि कल के डेट में जब आप 11 पहुंचेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मिलेगा ज़्यादा। ठीक है, सो आई एम नॉट यूजिंग ब्लैक एनी बोर्ड, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट प्रिपेयर यू, बी अ सेल्फ मास्टर सीखिए, राइट। ओके, you will see in the above activity that the nature, position and size of the image formed by a concave mirror that depend on the position of the object in relationship to इनमें संबंध होता है P, F और C में। The image formed is real for same position of the object, it is found to be virtual image for a center other position। The image is either magnified, reduced or has a same size। या फिर मैग्नीफाइड होगा या फिर रिड्यूस्ड होगा या फिर सेम साइज का होगा, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। A summary of this observation is given for reference in table 10.1। 10.1 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गहराई देखिएगा। अगर इसे at इंफिनिटी में रखा जाए, मतलब at द फोकस F पोजीशन दिखा रहा है, कैपिटल F, तो ये साइज क्या होगा इमेज का, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड। और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी, बिटवीन F एंड C में रखेंगे तो क्या होगा, डिमेंस्ड रियल एंड इन्वर्टेड। और C में रखेंगे तो क्या होगा, सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन C एंड F में रखेंगे तो क्या होगा, बियॉन्ड C इनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड। अट F मतलब कैपिटल F, अट इंफिनिटी में रखेंगे हायर इनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन P एंड F, बिहाइंड एंड मिरर इनलार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट। रिप्रेजेंटिंग ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। अब रे डायग्राम दिखा रहा है भाई, देखिए भाई यहाँ पर जितना कुछ दिखा रहा है ना, टेंशन नहीं लेने का, लिख लिख के पढ़ने का, लिख लिख के रिमेंबर करने का। जब आप लिख के नहीं पढ़िएगा, रिमेंबर नहीं कीजिएगा, तो भूलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब यहाँ पर रे डायग्राम दिखाया गया है। अब इस रे डायग्राम को मैं बताऊँ कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसमें जितने भी डायग्राम है उसको आपको गहराई से प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करके आगे बढ़ेंगे रे डायग्राम को, तो यहाँ पर दिखाया गया रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से कैसे बनता है, जब हम इन्फिनिटी में रखते हैं तो कैसे बनता है, तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। अब है भाई कि कॉन्केव मिरर को हम क्या यूज करते हैं, तो कॉन्केव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस। टॉर्च में ऐसे करते हैं, उसमें यूज किया जाता है। Searchlights and vehicle lights to get powerful parallel beams of light. They are often used as saving mirrors. Saving mirrors भी किया जाता है। Large image at the teeth of patients, large concave mirror, teeth of patient and large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace। जब मतलब मान लीजिए कि दांत को दिखाना है किसी को ऐसे करके, उसमें भी यूज किया जाता है, राइट। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स में। अब कॉन्वेक्स में कैसे बनता है यार, वी स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्केव मिरर, नाउ वी शैल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं। वी कंसिडर टू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड द सेकेंड पोजिशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट is at a finite distance from the mirror।
The ray diagram for the formation of image by a convex mirror for these two positions of the object and shown in figure 10.2 and 10.2 respectively. The results are summarized in table 10.2. देखिए यहाँ पर दिया गया है पहला फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अगर आप उसे इन्फिनिटी में रखते हो तो यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी में रखने के बाद यहाँ पर कहाँ पर एफ में पड़ रहा है। जब ये जैसे ही आया इन्फिनिटी में तो डायरेक्टली आपके फोकल लेंथ यहाँ पर एफ में मिल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर दिया हुआ है। द सेम इट इज हियर, सो यू हैव टू सी इट एंड पोजीशन दिखा रहे हैं यहाँ पर कि इन्फिनिटी में रखा गया एट द फोकस एफ द बिहाइंड द मिरर। इस टेबल को आप एक बार ना बनाओगे, बना के लर्न कर लोगे, ठीक है। फिजिक्स कुछ नहीं है, अभी मैं कुछ ही दिनों में आपके फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल है ना उनको ये बना रहा हूँ। ये क्या कुछ नहीं, आप डरते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल, बोलते हैं समझ नहीं आता यार फिजिक्स न्यूमेरिकल। आपने मेरे वीडियो के सीरीज को देखा है? केमिस्ट्री फिनिश, बायोलॉजी फिनिश। लेकिन अब आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास जगाना होगा यार, जगाना होगा, तब तो आप कर पाइएगा। हाँ, रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट। मैंने पहले कहा है कि पहली बार में क्या करना है, बिना स्किप किए देखिएगा, उसको आप कलर से पूरी तरह रंग देंगे एकदम कॉन्सेंट्रेट होके। उसके बाद इन फिगर्स को प्रैक्टिस करना है। आपको जानना है कि आर जो है वो 2f होता है, स्मॉल f और बड़ा f क्या होता है, कहाँ पर p लिखते हैं, किसको छोटा f बोलते हैं, किसको बड़ा f बोलते हैं, मैंने ये बताया। फोकल लेंथ और कब कहाँ और किसका कैसे यूज होता है, जब हम किस पोजीशन में रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा कि क्या बनेगा। आप आगे जाओगे तो यहाँ पर दिखा रहा है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रेयर वैल्यू विंग मिरर्स इन व्हीकल्स में। अब क्या है कि these mirrors are filtered on the sides of the vehicles, enabling the driver to see traffic behind him or the facilities safe driving. Convex mirrors are preferred because they always give an erect। देखिए यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर जो क्यों रखा था, ये दिखाता है इरेक्ट ऑफ मिरर्स एंड preferred because they always give an erect diminished image, also very have a wider field of view as they are curved outwards. Thus, convex mirror enable to driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. कॉन्केव मिरर में ना बड़ा एक लार्जर एरिया दिखाया जाता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं ना उसके लिए आप क्या कीजिए, मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन जो भी आ रहा है उसको आप पढ़ लीजिए। कहाँ से पढ़िएगा, वो मैंने कहा था आपको कि जो इस्लाम की बुक है उनसे पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के उसको क्वेश्चन को लिखित अभ्यास कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभ्यास लिखकर अभ्यास करने से आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि मैं अभी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको मैं स्पीडली खत्म करने में लगा हुआ हूँ। क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि आपने स्टडी कर ली है, लेकिन उसको मैं एक सिंपल से अंदाज में आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कैसे करके आपको स्टडी करनी है। क्योंकि यदि आप उसी अंदाज से स्टडी करेंगे तब जाके मतलब मैं तो यहाँ पर आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपका मतलब चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इसमें यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स फार्मूला, ये सब बहुत सारी चीज़ें दी गई है। कहाँ पर प्लस एक्स, कहाँ पर माइनस एक्स एक्सिस ये दिखाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे थोड़ा सा और कि भाई हम लोग को इसको हैंडल करना कैसे है, हाउ टू हैंडल। ये चैप्टर जो है हम लोग अभी जैसे कि हैंडल कर रहे हैं, इसमें लॉट्स ऑफ फिगर्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैज बीन गिवन। चलिए देखते हैं साइन कन्वर्सन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। While dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign conventions called the new Curtin sign convention. In this convention, the pole P of the mirror is taken as the origin. The principal axis of the mirror is taken at the x-axis, x-axis of the coordinate system. The convention and follows the object is always placed to the left of the mirror. ऑब्जेक्ट को जो है ना लेफ्ट ऑफ द मिरर होता है। दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड।
all distance parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. अब जो जो चीज बताया गया है कहां पर होता है एक्स एक्सिस में, कहां पर पॉजिटिव होता है, कहां पर नेगेटिव होता है, आप देख लोगे यार. लेकिन हाँ, जो मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आपको समझना है. मिरर फार्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. मिरर फार्मूला है, मैग्निफिकेशन है, इसको हम लोग अलग पार्ट में करेंगे, अलग पार्ट में. लेकिन हाँ, जहाँ तक अभी हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन इसको मैं सोच रहा हूँ खत्म करें. जो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे ना, वी वेर स्टडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यस, रिफ्लेक्शन तब आएगा रिफ्लेक्शन. तो चलिए हम लोग रिफ्लेक्शन को फिनिश कर देते हैं आज, है ना, इसी में कर देते हैं ताकि अगले क्लास में होगा रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है भाई? एक सीधी सी बात है. अभी हमने जो रूल देखा, व्हाट आई हैव रेड अर्लियर व्हेन आई वाज इन मैट्रिक एज वेल एज आई वाज इन इंटर. तो उसमें क्या क्या चीज़ दिखाया जाता है, क्या चीज़ बताया जाता है, ठीक है. यहाँ पर वही बताया जाएगा ना, मैग्निफिकेशन फार्मूला में प्लस और माइनस का अंतर होता है. चलिए देखिए, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन. इन अ स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू. उसको छोटा डी से यू से इंडिकेट किया जाता है. द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस भी. You already know that the distance of the principal focus from the pole is called the focal length f. There is a relationship between these three quantities given by the mirror formula which is expressed as. याद रखिएगा, मिरर फार्मूला इसका क्या होता है, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. This formula is valid in all situations for all spherical mirrors. For all position of the object, you must use the new coordinate sign conventions in substitution numerical values for u, v, f and r in the mirror formula for solving problems. यहाँ पर दिखाया गया है the new Gaussian sign convention for spherical mirrors. ये मिरर रख दिया गया है भाई, डिस्टेंस दिखा दिया गया है कि हाइट अपवर्ड पॉजिटिव है, अगर डाउन में रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नीचे रहेगा नेगेटिव. याद करो ना यार, इसको ग्राफ की तरह याद करो. ग्राफ में आप उधर डालते हो इधर एक्स इधर वाई, मान लो डाल रहे हो, तो ऊपर गया पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ आप देख रहे हैं फिगर, देखिए 10.9 को, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रहा, हाइट अपवर्ड, इस 10.9 फिगर को देख लीजिएगा. अगर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर गिव द रिलेटिव extent to which the image of an object is magnified, which with respect to the object size. It is expressed as a ratio of the height of the image to the height of the object. It is usually represented by the letter m. उसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है. किसको क्या से डिनोट किया जाता है, इसको जानना बहुत जरूरी है, और इसको जानने के लिए आपका लिख लिख कर पढ़ना बहुत जरूरी है. So m is equal to height of the image h dash and by height of the object h, right, h dash and h. The magnification m is also related to the object distance u and image distance v. It can be expressed as magnification m is equal to h dash by h is equal to minus v by u. You may note that the height of the object is taken to the positive as the object is usually placed above the principal axis. The height of the image formed should be taken as positive for virtual image. ये आप ये सब देख लोगे ना कि कहाँ पर पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल बनता है, कहाँ पर नेगेटिव आता है तो क्या बनता है. इसको आपको समझने की जरूरत है. अब बोलो कि हर चीज को टीचर समझा देना, इट इज नॉट पॉसिबल. मैं तो कहता हूँ कि आपके सबसे अच्छे शिक्षक खुद आप हैं, बस तो मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ. एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो, a convex mirror used for rear value on the automobile has a radius of a curvature of 3 m. If a bus is located at 5 m from the mirror, find the position, nature and size of the image. क्या इमेज होगा बोलिए, पूछ रहा है. सॉल्यूशन दिया गया है कि रेडियस कर्वेचर r इज इक्वल टू +3 दिया हुआ है, u इज इक्वल टू -5 दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाइट ऑफ डिस्टेंस h डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r/2 होता है, जिससे कि फोकल लेंथ निकाल लिए.
अब क्या करना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फार्मूला में वैल्यू रखते जाओ, आप वैल्यू को रखते गए, तब जाके आपका फाइनली आंसर आ गया कि जैसे ही मान लीजिए आंसर आया प्लस 0.23, और अगर प्लस में आंसर आया तो ये जान लीजिए कि वो वर्चुअल होगा, ना कि रियल, राइट। द इमेज इज वर्चुअल। प्लस में आंसर आया मतलब इरेक्ट है एंड स्मॉल है। इन साइज ऑफ फैक्टर जो आया साइज ऑफ फैक्टर, तो वो हो गया 0.23। ये इसका आंसर है। इसी तरह एग्जाम्पल मिलेंगे, इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो मैं समझता हूं कि आप हल्का हल्का इसको समझने लगे हैं। हम लोग अगले दिन जाएंगे रिफ्रैक्शन में, उसके बाद हम लोग मतलब डायरेक्टली गहराई से इसको देखेंगे। तो हमने क्या देखा भाई, हमने बहुत कुछ देखा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, हमने देखा कि स्मॉल एफ किसको बोलते हैं, बड़ा एफ किसको बोलते हैं, आर किसको बोलते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f के लिए क्या फार्मूला है, कैसे उसको हम इंडिकेट करेंगे। लेकिन हाँ, आपको कोई कितना ही बढ़ा दे, टीचर्स कितना ही पढ़ा दें, यदि आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए सेल्फ प्रैक्टिस करते रहिए और लगातार ध्यान करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, तो आप आगे बढ़ते जाइए फीस में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।